اس ویڈیو کے اندر ہم جس چیز کے اوپر ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پلیٹو کی اسکیم آف ایجوکیشن، ان کی جو ہے وہ کانسیپٹ آف کمیونزم، اور ان کا جو ریئل اسٹیٹ کا آئیڈیل اسٹیٹ کا جو ان کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں، فلاسفر کنگ کے بارے میں، اور پھر ہم بریفلی تھوڑا سا دیکھیں گے کہ پلیٹو کا جو کمیونزم ہے وہ مارکس کے کمیونزم سے کتنا یعنی کہ فرق ہے، ان کے اندر آیا کہ ڈسیملرٹیز ہیں یا سملرٹیز ہیں۔ پھر ہم اس کے اوپر جو مختلف پولیٹیکل تھنکرز نے جو کرٹیسزم کی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہم ایک اوور ویو دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ اب جس طرح سے ہم نے پریویس لیکچر کے اس کی جو تھیوری آف جسٹس ہے اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ تھیوری آف جسٹس کو وہ اس طرح سے ایکسپلین کر رہے تھے کہ انسان کی جو سول ہے اس سول کے بیسیکلی 3 ٹائپس ہیں یا 3 ان کے جو ہیں وہ پارٹس ہیں۔ پھر ان پارٹس سے ریلیٹڈ وہ کیا کر رہا تھا، وہ ان پارٹس سے ریلیٹڈ سوسائٹی کے اندر، اسٹیٹ کے اندر وہ کیا کر رہا تھا، 3 کلاسز ڈیولپ کروا رہا تھا، جن میں سے ایک آپ کی رولنگ کلاس ہو گئی، آگزلری کلاس یا سولجر کلاس جسے وہ کہہ رہا ہے، اور تھرڈ ون جو ہے اس کی جو ورکنگ کلاس یا پروڈیوسنگ کلاس ہے۔ اب ان کلاسز کا ہمیں پتہ کیسے چلے، کہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلے کہ کسی آدمی کے اندر جو ہے وہ ریشنل جو پارٹ ہے وہ زیادہ ہے، کس آدمی کے اندر جو ہے وہ ایپیٹیٹو پارٹ زیادہ ہے، کس آدمی کے اندر اسپرٹڈ پارٹ زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، اس کے لیے ہمیں وہ ایک دوسرا سسٹم دے رہا ہے، دوسری ایک تھیوری دے رہا ہے، دوسرا کانسیپٹ دے رہا ہے، جسے ہم اسکیم آف ایجوکیشن کہتے ہیں پلیٹو کی۔ یہ اسکیم آف ایجوکیشن بہت ہی زیادہ ہالسٹک ہے۔ ہالسٹک اس سینس کے اندر سب سے پہلے تو یہ پلیٹو کو یعنی کہ یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ پلیٹو دنیا کے اندر وہ پہلا آدمی تھا جس نے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ایجوکیشنل اسٹڈی کی اسکیم سے ریلیٹڈ آپ کو ایک پورا ایک پیٹرن دیا، اور دنیا کے اندر یہ پہلا آدمی ہے۔ اب اس کی یعنی کہ جو ایجوکیشنل اسکیم ہے اس کے اندر پھر اگین ایک دوسرا اسے ہم کریڈٹ یہ بھی دیتے ہیں کہ یہ ایجوکیشنل اسکیم کے اندر جو ہے وہ صرف تھیوری کی بات نہیں کر رہا، وہ اس کو جو ہے وہ ریلیٹ کر رہا ہے، پریکٹیکل کے ساتھ بھی ریلیٹ کر رہا ہے، یعنی کہ اس کے اندر تھیوری بھی تو یقیناً ہوگی، اس کے اندر پریکٹیکل ٹریننگ بھی ہوگی۔ اچھا، تو پھر دوسرا اس کی جو ایجوکیشنل اسکیم ہے وہ صرف کلاس، کسی بھی ایک پرٹیکولر کلاس کے لیے نہیں ہے، کسی بھی 2 کلاسز کے لیے نہیں ہے۔ اس کی جو اسکیم آف ایجوکیشن ہے یہ پوری جو پاپولیشن ہے، انٹائر جو سوسائٹی ہے اس تمام کے لیے ہے۔ پھر یہ جینڈر ایکولیٹی کی بات بھی کرتا ہے۔ پلیٹو کا یہ ماننا تھا کہ جب آپ خواتین کو جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں دیتے، ویمن کو جب آپ ایجوکیشن نہیں دیتے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کی آدھی سے زیادہ جو پاپولیشن ہے اسے ویسے ہی آپ کیا کر رہے ہیں، یوز لیس بنا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایجوکیشن جو ہونی چاہیے وہ دونوں کو ایکول بیسس کے اوپر دینی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے اسٹارٹ کریں، آپ کو یہ ذہن میں بات رکھنی ہوگی کہ اس ٹائم جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ اس ٹائم جو ہے وہ ایتھنس کے اندر گریک کے پاس 2 شہر تھے، ایک کو آپ ایتھنس کہتے ہیں، دوسرے کو آپ اسپارٹا کہتے ہیں۔ دونوں کے پاس جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ موجود تھا، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے پلیٹو کی ایجوکیشن کی اسکیم سے پہلے کوئی ایجوکیشن سسٹم تھا ہی نہیں، دونوں کے پاس موجود تھا یقیناً۔ لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ جو اسپارٹا کی ایجوکیشنل اسکیم تھی وہ پبلک تھی، یعنی کہ وہ گورنمنٹ اسپانسر کرتی تھی، وہ گورنمنٹ ہر بچے کو جو ہے وہ ایجوکیشن دیتی تھی۔ ایتھنس کی جو ایجوکیشنل اسکیم تھی وہ کیا تھی؟ وہ پرائیویٹ تھی، وہ پبلک نہیں تھی۔ ہر آدمی جو ہے، جس طرح سے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ آپ ٹیوشن ہائر کرتے ہیں، ٹیوٹر کو آپ ایک پرٹیکولر اماؤنٹ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ آپ کے بچوں کو 1 یا 2 گھنٹے آ کر پڑھاتا ہے۔ تو ایتھنس کے پاس یہی تھا کہ وہ آپ کیا تھی، پرائیویٹ ایجوکیشن تھی۔ تو پرائیویٹ ایجوکیشن کا ایک بڑا فقدان یہ ہوتا ہے کہ جو ویل ٹو ڈو جو آپ کی کلاس ہے، جو آپ کی یعنی کہ وہ کلاس جسے آپ ایرسٹوکریٹک کلاس کہتے ہیں، ان کے بچے تو ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کلاس کے بچے ایجوکیشن نہیں لے پا رہے ہوتے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا یا جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ایتھنس کے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر یہ ایک ڈرا بیک تسلیم کیا جاتا ہے۔
अच्छा, आप कहेंगे कि स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम बड़ा ही शानदार है क्योंकि वो पब्लिक स्पॉन्सर्ड है, लेकिन उनका एक फिर दूसरा फुकदान है, उनके पास एक दूसरा फॉल्ट लाइन है, वो दूसरा एक उनका ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है कि स्पार्टा का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ फोकस करता है मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर। वो यानी कि आपको लिटरेचर नहीं पढ़ाते, वो आपको म्यूज़िक नहीं पढ़ाते, वो आपको आर्ट नहीं पढ़वाते। तो इस वजह से वो सिर्फ आपको मार्शल जो उनकी एजुकेशन सिस्टम है वो आपको घोड़े सवारी आपको सिखाते हैं, तीर अंदाजी सिखाते हैं, लड़ना सिखाते हैं। तो इस वजह से यानी कि जो एथेंस का एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर लिटरेचर भी है, वहाँ पर म्यूज़िक भी है, वहाँ पर रक्स भी है, वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़लसफ़ा भी है, लॉजिक भी है, वहाँ पर एस्ट्रोनॉमी भी है। तो इन दोनों का मिक्सचर करके प्लेटो अपना एक कॉन्सेप्ट देते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जिसे हम स्कीम ऑफ एजुकेशन कहते हैं। ये स्कीम ऑफ एजुकेशन, इसकी एक बड़ा करेक्टर दूसरा ये भी है कि इस स्कीम ऑफ एजुकेशन के अंदर हम लोगों की तरह नहीं है कि भाई आप 16 साल पढ़ें, 16 साल पढ़ने के बाद आपको एक डिग्री मिलेगी, डिग्री मिलने के बाद आप मार्केट के अंदर जाकर कोई भी जॉब कर सकते हैं। प्लेटो की जो एजुकेशन ऑफ स्कीम है वो 50 सालों तक कंटिन्यू चल रही है, जिसके अंदर 2 एग्ज़ाम हैं और बाकी जो है वो 35 साल के बाद उनकी जो है वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। ये स्कीम ऑफ एजुकेशन स्टार्ट हो रही है 6 साल की, यानी कि जब बच्चे की एज 6 साल हो रही है तो उसके बाद उसका एजुकेशनल जो क्या कहते हैं कि प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एजुकेशन प्रोसेस ये 6 साल से लेकर 20 साल तक ये चलेगा। ये फर्स्ट स्टेज है, आप यूँ समझ लीजिए कि ये आपका प्राइमरी स्टेज है। अच्छा, इसके अंदर क्या है होगा, इसके अंदर आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी कि सही क्या है, गलत क्या है, मॉरल क्या है, इमोरल क्या है, जस्टिस क्या है, इनजस्टिस क्या है, बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी। 20 साल जैसे आपके पूरे होंगे, 20 साल होने के बाद आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन या फर्स्ट फिल्ट्रेशन जिसे कहा जाता है, फर्स्ट फिल्ट्रेशन होगी। उस फर्स्ट फिल्ट्रेशन के अंदर जो बच्चा फेल होगा वो तस्लीम किया जाएगा कि ये क्या है, ये वर्किंग क्लास या प्रोड्यूसिंग क्लास का हिस्सा बनेगा, क्योंकि उसके पास एपिटेटिव पार्ट ज़्यादा है। जो बच्चा उसे पास करेगा, पास होने के बाद उसकी सेकंड स्टेज या हायर स्टेज जो है वो स्टार्ट होगी, और उसके अंदर उस बच्चे को आप जो है वो जिम्नास्टिक की एजुकेशन देंगे, उस बच्चे को आप फाइटिंग की एजुकेशन देंगे, उस बच्चे को आप जो है वो फ़लसफ़ा पढ़ाना शुरू करेंगे, लॉजिक पढ़ाना शुरू करेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें आप उसे मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी। ये एजुकेशन आपकी चलेगी 35 साल तक। 35 साल के बाद आपका सेकंड एग्ज़ाम होगा। अब ये जो सेकंड एग्ज़ाम है, उस सेकंड एग्ज़ाम के अंदर जो बच्चा फेल होगा वो आपका जाएगा ऑक्सिलरी क्लास के अंदर, या आपका सेकंड जो आपका सोल्जर क्लास है वहाँ पर जाएगा। अच्छा, 35 साल के बाद यानी कि दोनों एग्ज़ाम जो बच्चा पास करेगा वो आपका थर्ड स्टेज ऑफ एजुकेशन में जाएगा, और वो थर्ड स्टेज ऑफ एजुकेशन जो होगी वो आपकी कम्प्लीटली ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर सिर्फ आप फ़लसफ़ा पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप ये पढ़ेंगे कि हाउ टू रूल, हाउ टू गवर्न। अब 15 साल आप या क्या करेंगे, एज अ ट्रेनिंग के तौर पर आप किसी रूलर के साथ काम करेंगे, और 50 साल के बाद आप रूलिंग क्लास का हिस्सा बनेंगे। आपको ये डिक्लेयर किया जाएगा कि आप जो है वो रैशनल क्लास का एक हिस्सा हैं। तो इस तरह से यानी कि 50 साल के बाद जो 3 जो आपकी स्टेजेस हैं वो पास करने के बाद जो आएगा वो आपका रूलिंग क्लास कहलाएगा। तो ये आपका जो है वो एजुकेशनल सिस्टम जो है वो आपका प्लेटो का है। इस एजुकेशनल सिस्टम का जो बेस है वो कभी भी रैशनल नहीं है, यानी कि इस एजुकेशनल सिस्टम के अंदर हर क्लास से बच्चा जो है उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, हर जेंडर के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, हर लैंग्वेज के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अगर एक आदमी जो है वो रूलिंग क्लास का है तो उसका बच्चा जो पैदा होगा वो रूलिंग क्लास ही होगा, ऐसा भी नहीं है। आगे चलकर जो इसकी स्कीम ऑफ कम्युनिज़म जो है, इसका थ्योरी ऑफ कम्युनिज़म जो है वहाँ पर इसे फिर क्या करता है हम देखेंगे, तो वो आपको जो है वो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म से भी ये किस तरह से समाज को रोक रहा है। तो ये इसकी जो है वो स्कीम ऑफ एजुकेशन है। सेकेंडली इसकी जो है उसे हम कहते हैं स्कीम ऑफ कम्युनिज़म भी कहते हैं, इसे आप जो है वो कहते हैं कम्युनिज़म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और कम्युनिज़म ऑफ वाइव्स भी इसे कहा जाता है। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके ऊपर जो है वो प्लेटो के ऊपर सबसे ज़्यादा जो तनकीद की गई है वो उसकी स्कीम ऑफ कम्युनिज़म के ऊपर की गई है। स्कीम ऑफ कम्युनिज़म क्या है?
प्लेटो का ये मानना था कि जब आप एजुकेशन जो है वो किसी भी कौम के लिए या किसी भी स्टेट के लिए डेवलप होने के लिए सबसे प्राइमरी जो सोर्स है दैट इज़ एजुकेशन, वो एजुकेशन है। फिर कहता है कि जो सप्लीमेंट्री जो सोर्स है दैट इज़ कम्युनिज्म, वो कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म वो किस तरह से, अच्छा ये जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट इसके जहन में आया है वो भी बेसिकली स्पार्टा से ये इंस्पायर्ड था। आप यूँ समझ लीजिए कि था तो एथेंस का प्लेटो, लेकिन काफ़ी हद तक स्पार्टा का जो सिस्टम है उससे जो है वो ये काफ़ी इंस्पायर्ड भी था। स्पार्टा के अंदर प्राइवेट किचन का कॉन्सेप्ट नहीं था। स्पार्टा के अंदर एक ही दस्तरखान होता था, एक ही वहाँ पर किचन होता था जहाँ पर पूरा शहर आकर दोपहर को भी खाना खाता था, रात को भी खाना खाता था। वहाँ पर जो है वो उनका सिपाही भी खाना खाता था, वहाँ पर उनका कमांडोर भी खाना खाता था, वहाँ पर उनका रूलिंग भी करता था और वहाँ उनका वर्किंग क्लास भी खाना खाता था। तो इस वजह से वहाँ पर किसी भी किस्म का कोई क्लास नहीं है, वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। उससे मुतासिर होकर इसने अपनी कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। अच्छा, कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट किस तरह से ये बयान करता है? ये करता है कि प्लेटो कहता है कि आपकी जो स्टेट है उस स्टेट के अंदर बेसिक जो इश्यूज़ हैं, बेसिक जो इविल हैं वो दो हैं। एक तो आप करप्शन करते हैं, नंबर 2 आप नेपोटिज्म करते हैं। करप्शन जी आप क्यों करते हैं? करप्शन भी आप इस वजह से करते हैं कि आपको अपनी प्राइवेट असेट्स या प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या करनी होती है, बढ़ानी होती है। क्यों बढ़ानी होती है? क्योंकि आपने लोगों को दिखानी होती है। नंबर 2 आप नेपोटिज्म क्यों करते हैं? नेपोटिज्म इस वजह से करते हैं कि आप अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने चचाजाद भाई को, आप अपने रिश्तेदारों को क्या करते हैं, आगे लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से आप नेपोटिज्म करते हैं। तो इस वजह से इसका मानना ये है कि आपके जो मेजर जो प्रॉब्लम है ये दो हैं, एक करप्शन, दूसरा नेपोटिज्म। उसका हल क्या है? उसका हल ये है, ये कहता है कि जी आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर दें, प्रोहिबिट कर दें। किसी भी आदमी को ये परमिशन ही ना हो, किसी भी इंडिविजुअल को ये परमिशन ही ना हो कि उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। जब उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ही नहीं तो वो करप्शन क्यों करेगा? क्योंकि उसे असेट तो बढ़ाने नहीं है, किसी के पास कोई असेट ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये कहता है कि नेपोटिज्म को किस तरह से रोका जाए। नेपोटिज्म को जी इस तरह से रोका जाए कि अगर एक इंडिविजुअल है, उसे पता ही नहीं है कि मेरा बेटा कौन है, उसे पता ही नहीं है कि मेरा भाई कौन है, उसे पता ही नहीं है कि मेरा अबू कौन है, अब ये कैसे पॉसिबल है? ये इस तरह, उसका हल ये इस तरह से बताता है कि आपकी जो परमानेंट मोनोगैमस सेक्सुअल रिलेशनशिप है, यानी कि जिसे हुर्फ आम के अंदर जिसे हम कहते हैं कि शादी का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये ख़त्म करता है कि शादी का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। परमानेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? आपकी जनरेशन किस तरह से बढ़ेगी, आप ग्रो किस तरह से करेंगे? उसका हल ये इस तरह से बताता है कि भाई आपकी गवर्नमेंट की तरफ से एक रेगुलेटेड ब्रीडिंग एक क्या होगा, एक फेस्टिवल होगा, साल के अंदर एक बार होगा, जिसके अंदर आप जो है वो एक बेस्ट पॉसिबल जो आपकी यानी कि क्या हैं, जो मेल हैं वो फीमेल को दिए जाएंगे और फीमेल जो है वो मेल को दिए जाएंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से ये होगा और उससे क्या होगा, आपके बच्चे पैदा होंगे। बच्चों को क्या होगा, फिर एक माँ है, उसने अगर एक फॉर सपोज अगर 1000 आपकी क्या हैं ख़वातीन हैं, 1000 बच्चे पैदा होते हैं या 600 या 700 जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, फिर आप क्या करें, फिर एक बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीमेल के पास आज अगर एक बच्चा है तो कल उसके पास दूसरा बच्चा आना चाहिए, यानी कि वो एक बच्चा जो होना चाहिए वो रोटेट होना चाहिए। यानी कि इस तरह से अगर 1000 खातून हैं, 1000 बच्चे हैं, तो वो सारे बच्चे एक सभी ख़वातीन के अंदर क्या करने चाहिए, रोटेट करने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि किसी भी खातून को ये पता नहीं चलेगा कि मेरा बच्चा कौन सा है और किसी भी बच्चे को ये पता नहीं चलेगा कि मेरी माँ कौन सी है। इस तरह से हर खातून उन 1000 के 1000 बच्चों को अपना बेटा समझेगी और हर बच्चा उन तमाम 1000 के 1000 ख़वातीन को अपनी माँ समझेगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी जो फैमिली है वो नेशनलिज्म ऑफ फैमिली डेवलप होगा कि हर आदमी हर दूसरे को अपना रिश्तेदार समझेगा और इसमें से क्या होगा, इसमें से किसी भी किस्म का कोई नेपोटिज्म
नहीं आएगा। तो इस वजह से क्या होगा, अच्छा यहाँ पर एक क्रिटिक ये भी की जाती है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये होती है कि भाई जब आप समाज को तब्दील करने या आइडल स्टेट की जब बात करते हैं तो उसका मकसद ये है कि आप रिवोल्यूशनरी हैं। प्लेटो क्या है, रिवोल्यूशनरी है, लेकिन साथ में प्लेटो ये भी कह देता है कि भाई जो आपका ऊपर वाला क्लास है, जो आपका यानी कि यानी कि ये जो इसकी जो स्कीम ऑफ कम्युनिज्म है, ये लोअर क्लास के लिए नहीं है। ये जो इनकी जो क्या होगा, इनकी जो ब्रीडिंग होगी, इनका यानी कि जो सेक्सुअल जो फेस्टिवल होगा साल के अंदर, उसके अंदर जो लोअर क्लास या वर्किंग या प्रोड्यूसिंग क्लास जो है उसे शामिल नहीं किया जाएगा। उसे क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये कहता है कि उस जो प्राइवेट या वर्किंग क्लास जो है, प्रोड्यूसिंग क्लास जो है, उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वही तो है जो आपकी इकोनॉमी को रन कर रहा है। वही तो प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर आप उसे देंगे तभी तो वो दिल के साथ काम करेगा। तो आप ये जहन में रखें कि स्कीम ऑफ कम्युनिज्म जो है वो सिर्फ ऊपर वाले 2 क्लासेस के लिए हैं। तो यहाँ पर जब आप सिर्फ 2 क्लासेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसका मकसद ये है कि आप स्टेटस को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ तो प्लेटो रिवोल्यूशनरी बन जाता है, एट द सेम टाइम वो स्टेटस को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये बेसिकली प्लेटो की जो नज़रियात हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक आपको कंट्राडिक्शन नज़र आएगा। अच्छा, फिर सवाल ये पूछा गया प्लेटो को कि इंसान जो होता है वो काम करता है सिर्फ 2 चीज़ों के लिए। एक तो इंसान काम करता है अपने असेट बढ़ाने के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, आपने वो तो दी नहीं। फिर दूसरा इंसान काम करता है अपनी फैमिली की यानी कि उसे ग्रोथ के लिए। जब एक आदमी के पास फैमिली ही नहीं है तो व्हाट विल मेक एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइड, यानी कि एक आदमी को क्या चीज़ आपकी सेटिस्फेक्शन देगी। तो यहाँ पर जो प्लेटो है वो ये कहता है कि सेटिस्फेक्शन जो मिलेगी उसे, वो मिलेगी यूनिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी से, यानी कि वो हर आदमी को, सोसाइटी के हर इंसान को अपनी फैमिली समझेगा। तो इस वजह से सोसाइटी आपकी क्या होगी, वो यूनिफाइड होगी। यूनिफाइड जब होगी तो फिर क्या होगा, हर आदमी दूसरे के लिए काम करेगा और यहीं से आपकी एग्रीगेट हैप्पीनेस डेवलप होगी। और एग्रीगेट हैप्पीनेस जो होगी वो आपकी स्टेट की बहबूद के लिए लाजिम है। तो इसी तरह से यानी कि आपकी क्या होगी, ये आपकी सोसाइटी, आपका स्टेट जो है वो काम करता रहेगा। बार्कर पॉलिटिकल थिंकर हैं, उसके बकौल के प्लेटो की जो थ्योरी है ये मल्टी फैसेटेड है, यानी कि इसके अंदर यूजेनिक्स भी है, इसके अंदर इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन भी है। इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन से मुराद ये है, यूजेनिक्स तो आप समझ ही गए होंगे। इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन ये है कि भाई एक खातून, हमारे पास ऑर्डिनरी या ट्रेडिशनली 2022 के अंदर भी ये होता है कि ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि हम मोस्ट ऑफ़ द फैमिलीज़ जो है उसके अंदर ये होता है कि एक ख़ातून जो है उसका काम सिर्फ किचन संभालना होता है, बच्चे पैदा करना और घर के अंदर काम करना। लेकिन बार्कर कहता है कि प्लेटो की जो स्कीम ऑफ कम्युनिज्म है उसके अंदर हर औरत को ये राइट दिया गया है, हर औरत को एम्पावर किया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रियासत की कामों के अंदर, रियासत की बहबूद के अंदर क्या करे, हिस्सा ले सके। नेशनलाइजेशन ऑफ फैमिली आप समझ गए हैं कि जब किसी को कुछ पता ही नहीं है तो हर बच्चा हर का बेटा है और हर बाप जो है वो हर किसी का बाप है। तो इस वजह से नेशनलाइजेशन ऑफ फैमिली है। जब आपकी तमाम की तमाम फैमिली एक होगी तो फिर वहाँ पर यूनिफिकेशन आपकी डेवलप होगी। इसकी बार्कर मजीद कहता है कि इसके अंदर जो है वो हर औरत और हर मर्द जो है वो ग्रेटर फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हर इंसान की जो है वो जो कैपेसिटी है, मेंटल ग्रोथ जो है वो क्या होगी, डेवलप होगी। तो ये इसका जो है वो स्कीम ऑफ कम्युनिज्म है। आगे हम चलते हैं कि मार्क्स की जो कम्युनिज्म है या जो प्लेटो का जो कम्युनिज्म है, इसके अंदर बुनियादी जो फ़र्क है वो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो ये होता है कि एक तो प्लेटो जो है वो बेसिकली आइडलिस्ट है। आइडलिस्ट से मुराद ये है कि उसका जितना भी ये कॉन्सेप्ट, ये आइडल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये यूटोपियन है, ये किसी भी ख़त्े के अंदर, दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है और ये मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करे। तो इस वजह से हम उसे कहते हैं आइडियलिस्ट कहते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लेटो को हम कहते हैं फादर ऑफ आइडलिज्म कहते हैं।
दूसरी तरफ मार्क्स जो हैं वो क्या है, मटीरियलिस्ट हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि आइडिया दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, हर चीज़ मटीरियल ही है। प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो सिर्फ दो क्लासेस को प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जबकि मार्क्स का जो कम्युनिज्म है वो पूरी सोसाइटी को क्या कर रहा है, फ़ायदा दे रहा है। प्लेटो तीन क्लासेस को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि मार्क्स का जो कम्युनिज्म वो क्लास लेस सोसाइटी की बात करता है। मार्क्स ये कहता है कि ये जो क्लास है सोसाइटी के अंदर, बेसिक जो फितने की जो जड़ है वो क्लास ही है, जबकि प्लेटो कहता है कि क्लास के आने के साथ सोसाइटी हार्मोनाइज हो रही है। प्लेटो आगे ये कहता है कि आपका जो क्लास की जो बुनियाद है वो क्या है, स्पिरिचुअल क्वालिटी है, यानी कि रैशनल ज़्यादा है तो आप एक अलग क्लास के अंदर हैं, आप एपिटेटिव ज़्यादा हैं तो आप एक अलग क्लास के अंदर हैं। जबकि मार्क्स कह रहा है कि स्पिरिचुअल क्वालिटी का क्लास के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज़ बेसिकली इकोनॉमिक असेट्स जो आपको एक क्लास या दूसरी क्लास के अंदर फ़र्क बता रहे हैं, तो उसकी जो बुनियाद है वो इकोनॉमिक स्टेटस है। इकोनॉमिक स्टेटस से किस तरह से जान छुड़ाएंगे? मार्क्स कहता है कि थ्रू रिवोल्यूशन, थ्रू वायोलेंट मेथड। प्लेटो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रेवोल्यूशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए पीसफुल मेथड के थ्रू, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है, और वो क्या है, आइडियली परफेक्ट स्टेट, जिसके अंदर इक्वलिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जिसके अंदर जो है वो हर आदमी दूसरे के लिए काम करे, किसी भी किस्म का कोई झगड़ा ना हो, किसी भी किस्म का कोई फसाद ना हो। दोनों का ऑब्जेक्टिव एक है, लेकिन दोनों का जो पैरामीटर्स, दोनों का जो मेथड्स है, दोनों का जो व्यू पॉइंट है कम्युनिज्म से रिलेटेड, वो बुनियादी तौर पर एक दूसरे से अलग है। अब हम आ जाते हैं कि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है। अच्छा, ये तो आपने देखा कि उसने सबसे पहले आपको बताया कि थ्योरी ऑफ फॉर्म क्या होती है। थ्योरी ऑफ फॉर्म बताने का उसका जो मकसद था वो ये है कि आप सच और झूठ में बुनियादी तौर पर फ़र्क को समझ सकें। नंबर 2, उसने आपको बताया कि जस्टिस क्या है। फिर उसने आपको उसका बताया कि जस्टिस आपकी ज़ात के अंदर भी होता है, जस्टिस आपकी ज़ात से बाहर भी होता है। आपकी ज़ात के अंदर आपका सोल है, फिर उसने आपको डिफ़ाइन करके दे दिया। फिर उसी के बेसिस के ऊपर उसने सोसाइटी के अंदर 3 क्लासेस जनरेट करवाए। 3 क्लासेस को जनरेट करवाने के बाद उसने स्पेसिफिकेशन ऑफ सोसाइटी आपको दे दी। फिर उसे मज़ीद उसने रिस्ट्रक्चर करने के लिए आपको कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दे दिया कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ना रखें, आप अपनी जो है वो परमानेंट जो सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं वो भी ना रखें। अच्छा जी, ये भी हो गया। उसके बाद वो आता है कि जब ये तमाम चीज़ें आप करेंगे तो फिर आपकी जो स्टेट बनेगी वो आइडियल बनेगी। किस तरह से आइडियल होगी? ये कहता है कि जो आपका जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर हमने जिक्र किया था कि भाई जो रूलिंग क्लास है वो सिर्फ वो क्लास होगा जिसके पास रैशनल ज़्यादा है, जिसके पास लॉजिक का इस्तेमाल ज़्यादा है। फिर ये मज़ीद कहता है कि उस क्लास के अंदर अगेन जिसके पास सबसे ज़्यादा लॉजिक होगा वही आपके ऊपर क्या बनेगा, किंग बनेगा, जिसे वो कहता है फिलोसोफर किंग कहता है। यानी कि सबसे ज़्यादा बेस्ट जो आपके पास होगा वही आपका रूल करेगा आपके ऊपर। अच्छा, ये कहता है कि आपकी आइडियल स्टेट तब तक नहीं बन सकती जब तक आपका किंग फिलोसोफर ना बन जाए या फिलोसोफर किंग ना बन जाए, तब तक आपकी स्टेट आइडियल बन ही नहीं सकती। ये सबसे पहले तो ये मानता है कि इंसान की जो स्टेट की जो एग्जिस्टेंस है, ये अरिस्टोटल भी यही मानते थे, सोक्रेटिस भी यही मानते थे कि स्टेट का जो वजूद हुआ है, रियासत जो बनी है, वो बनी क्यों है? वो कहते हैं कि रियासत इस वजह से बनी है कि इंसान की जो बेसिक नीड हैं उसे पूरा करने के लिए, उसे फुलफ़िल करने के लिए। बेसिक नीड जी क्या है? कहता है कि वो 3 हैं। एक आपकी इकोनॉमिक नीड है, दूसरी आपकी सिक्योरिटी की नीड है, तीसरी आपकी स्मूथ फंक्शनिंग है। स्मूथ फंक्शनिंग क्या है? दैट इज़ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट है। अच्छा, आपकी इकोनॉमिक नीड किस तरह से पूरी हो रही है? वो आपका एपिटेटिव क्लास जो है वो पूरा कर रहा है। अब एपिटेटिव क्लास क्यों पूरा कर रहा है, ये मज़ीद पिछले लेक्चर्स के अंदर हम जिक्र कर चुके हैं। सिक्योरिटी जो आपकी है, सिक्योरिटी को कौन पूरा कर रहा है? ये स्पिरिट या करेज वाला, ये वाला क्लास आपका जो है वो इसे कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह से जो आपकी स्मूथ फंक्शनिंग है, जो आपका रूलिंग है, वो आपका ये वाला कर रहा है। यानी कि
انڈیویڈولی بھی آپ یہ 3 حصوں کے اندر ہیں, اسٹیٹ کے اندر بھی آپ 3 حصوں کے اندر ہیں, اور آپ کی جو بیسک جو 3 نیڈز ہیں وہ بھی آپ کی ان 3 کلاسز کے تھرو کیا ہو رہی ہیں, کمپلیٹ ہو رہی ہیں. تو اس سے کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جی آپ کا جو اسٹیٹ کی جو ایگزسٹنس ہے وہ کیوں ہوئی, وہ ہوئی فار دا سیک آف گڈ لائف. آپ نے یہ 3 نیڈز پوری کرنی ہے, 3 نیڈز آپ کی پوری ہو گئی تو پھر کیا ہوگا, آپ کی گڈ لائف شروع ہوگی. اور گڈ لائف جب آپ کی شروع ہو گئی تو یہ آپ کی کنٹینیو چلے گی آئیڈل اسٹیٹ کے اندر, اور یہ آپ کی گڈنیس جو ہے یہ آپ کی ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی. ٹھیک ہو گیا. اب اگر اس کے اب سائلنٹ فیچرز کے اوپر بات کریں تو ایک تو اگر اسے ہم سم اپ کریں کہ آئیڈل اسٹیٹ پلیٹو کی کیا ہے, تو اس کے اندر سب سے پہلے بات آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ فلاسفر کنگ جو ہونا چاہیے, آپ کا کنگ جو ہونا چاہیے وہ فلاسفر ہونا چاہیے. اور کیوں ہونا چاہیے, وہ اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جو وزڈم ہے وہ کیا کر رہا ہے, ڈومینیٹ کر رہا ہے. اچھا, دوسرا وہ اسکیم آف ایجوکیشن آپ کو دے رہا ہے. آپ یہ ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ اسکیم آف ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ آپ فزیکل ٹفنیس بھی آ رہی ہے, آپ کی اسپریچول سافٹنیس بھی آ رہی ہے, اور یہ دونوں چیزیں ہونا انتہائی ضروری ہیں. جسٹس کے بیسس کے اوپر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ورچو جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ہو ہی بیسیکلی جسٹس کے لیے رہی ہے. جینڈر ایکولیٹی کی یہ بات کرتے ہیں, اسپیشلائزیشن کی بات کرتے ہیں, رائٹ مین ایٹ دی رائٹ پلیس کی بات کرتے ہیں, کمیونزم آف وائفز اینڈ پراپرٹی, یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کے علاوہ دوسرا یہ جو آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ کنٹرول آف آرٹ اینڈ لٹریچر, یعنی کہ جو چیپ اور گھٹیا قسم کا جو آپ کا لٹریچر ہے, چاہے آپ کا آرٹ ہے, وہ ہمیشہ لوگوں کے مائنڈ کو کیا کرتا ہے, وہ کرپٹ کرتا ہے. اور یہ ریاست کا کام ہے کہ اس کرپٹیڈ یا اس چیپ یا رانگ قسم کی جو آپ کا لٹریچر یا آرٹ ہے اس کو کیا کرے, کنٹرول کرے. کیونکہ اس سے آپ کی کیا ہوتی ہے, امورالٹی جو ہے آپ کی کیا ہوتی ہے, ڈیولپ ہوتی ہے. امورالٹی کو کنٹرول کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. ول ڈیورنٹ کی کتاب کے اندر اس نے ایک بڑی شاندار کوٹیشن دی ہے, یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اس نے کہا ہے کہ ان پلاٹونک اسٹیٹ دا انڈسٹریل فورس would produce but not rule, یعنی کہ جو آپ کا ٹریڈر ہے وہ صرف پروڈیوس کرے گا, آپ کا رول نہیں کرے گا. ملٹری فورس جو ہے وہ صرف اس کا کام پروٹیکٹ ہوگا, وہ رول نہیں ہوگا. دا فورس آف نالج, سائنس, فلسفی would be nurtured, protected and they would rule, یعنی کہ جو آپ کے اوپر جو رول کرے گا وہ صرف نالج, سائنس اور فلسفی کرے گی. یعنی کہ ہر آدمی اپنا اپنا کام کر رہا ہوگا, ہر کلاس اپنا اپنا کام کر رہی ہوگی اکارڈنگ ٹو ول ڈیورنٹ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر بڑی تنقید بھی کی گئی ہے. کیا تنقید جی کی گئی ہے؟ تنقید سب سے پہلے تو یہ کی گئی ہے کہ پلاٹونک اسٹیٹ از اے ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ. بائی نیچر یہ جو آپ کی آئیڈل اسٹیٹ ہے یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے, یہ ٹوٹلیٹیرین ہے. ٹوٹلیٹیرین کیسے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ جو آپ کا فلاسفر کنگ ہے وہ صرف ون مین شو ہے, اس کا کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اس کا کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اچھا, جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے وہ کیا ہوگا, وہ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, ایبسلیوٹ رائٹ والا ہو جائے گا, یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایبسلیوٹزم آ جائے گا, اس کے اندر ٹوٹلیٹیرینزم آ جائے گا, انارکزم آ جائے گا. تو اس طرح سے وہ کیا کرے گا, مس یوز آف پاور کرے گا, مس یوز آف اتھارٹی کرے گا. تو اس وجہ سے یہ جو آپ کی اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بیسیکلی ڈیموکریٹک ہے ہی نہیں. دوسری تنقید اس کے اوپر یہ بھی کی جاتی ہے کہ پلیٹو کی جو اسٹیٹ ہے وہ کمپلیٹلی بیس کر رہی ہے اسپیشلائزیشن کے اوپر, فنکشنل اسپیشلائزیشن, یعنی کہ ایک آدمی اگر پروڈیوسنگ ہے تو وہ ساری زندگی پروڈیوس کرے گا, ایک آدمی اگر کیا ہے رولر ہے تو وہ ساری زندگی رول کرے گا. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ چیز ہوگی کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ مونوٹونس ہو جائے گی, وہ کلر لیس ہو جائے گی, اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی, اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی اٹریکشن نہیں لگے گی. تو اوور آل جو آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آئے گی, اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی گرومنگ نہیں ہوگی. تو آپ یعنی کہ کچھ ٹائم کے بعد, ایک مثال کے طور پر اگر ایک ٹیچر ہے 5 سال پڑھانے کے بعد وہ ویسے ہی اسے آرڈنری لے لیتا ہے, اس کے اندر کوئی بھی چاہ نہیں ہوتا, اس کی مجبوری بن جاتی ہے صرف پڑھانا. اگر ایک سپاہی ہے تو وہ 1-2 جنگوں کے اندر تو مہارت اسکلز دکھائے گا, لیکن اس کے بعد وہ بے دلی کے ساتھ کام کرنا شروع کرے گا. تو یہ مونوٹونس لائف ہے آپ کی. اچھا, دوسرا اس کے اوپر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ پلیٹو کی جو آئیڈل اسٹیٹ ہے یہ یوٹوپین ہے, یہ صرف خیالی ریاست ہے, یہ صرف دماغ کے اندر ہے, یہ پریکٹیکلی دنیا کے اندر ہے ہی نہیں, یہ فٹ ہی نہیں ہے پریکٹیکلی.
کمیونزم آف پرائیویٹ پراپرٹی اور وائفس کا جو ہے اس کے اوپر ارسطوٹل بہت بڑے اس کے یعنی کہ ایک نقاد ہیں، کرٹک ہیں، اس کے بڑے اچھے فالوور بھی ہیں پلس میں کرٹک بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کمیونزم آف فیملی از موسٹ انٹالریبل، کرپٹ، امورل اینڈ انورکیبل تھیوری. اور وہ کیوں ہے، وہ جب ارسطوٹل کے ہم لیکچر کے اندر آئیں گے، ویڈیو کے اندر آئیں گے، تب ہم ڈسکس کریں گے کہ ارسطوٹل کا ایسا ماننا کیوں تھا. پھر یہ دوسری تنقید یہ بھی کی جاتی ہے کہ اگر آپ فلسفر کنگ ہیں، لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ ٹھیک سے جانتے ہیں اور آپ حکمران بھی اچھے ہوں. ایسے بہت سارے ایگزامپل ہیں کہ جو اچھے مطلب وزڈم والے آدمی تھے لیکن وہ ایڈمنسٹریٹر اچھے ثابت نہیں ہوئے. فار ایگزامپل حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ اس کے لیے تو یہ کہا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ میں جو ہوں وہ علم کا ایک شہر ہوں اور اس کا دروازہ جو ہے وہ علی ہے. لیکن علی کی جو دور حکومت ہے وہ ایز سچ اتنی زیادہ سکسیزفل نہیں تھی جتنی کہ عمر یا دیگر خلفاء کی تھی. تو اس وجہ سے یہ لازمی نہیں ہے کہ اونلی وزڈم کین ناٹ رن دا اسٹیٹ. آپ کی صرف وزڈم کی بنیاد کے اوپر آپ اسٹیٹ کو رول نہیں کر سکتے. نیچے اس کی 2-3 جو ہے وہ کوٹیشن میں نے دی ہے. ان کوٹیشنز کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، ان کوٹیشنز کو آپ جو ہے وہ لکھ بھی سکتے ہیں. ایون اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی بھی کنفیوژن ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر جا کر پوچھ سکتے ہیں اور ڈائریکٹ مجھے آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور پیشن، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.